Hello, Sid Roth here with Marilyn Hickey, and I have to tell you, an 81-year-old woman flies to Pakistan, has a couple 100,000, mostly Muslims, hear her proclaim Jesus, see miracles. How do you do it at 81, Marilyn Hickey? हेलो, सिड रोथ और मैरलिन हिकी यहाँ आपके दरमियान मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 81 साल की औरत पाकिस्तान जाती है जहाँ पर लाखों गैर मज़ाहिब लोग इनसे यीशु की मनादी सुनते और अपने मौज़ात हासिल करते हैं। मैरलिन हिकी, 81 साल की उम्र में ये सब आपने कैसे किया? Well, let me tell you how and how everyone can do it. मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे किया और हर कोई ये कर सकता है। That's even better. ये तो बहुत ही अच्छा होगा। Yes, faith in Jesus is the big key. जी हाँ, यीशु पर ईमान लाना ये सबसे बड़ी चाबी है। And by the way, it's not just a nice story. God's speaking to you right now. So Marilyn did something that I wish I could have done. वैसे ये सिर्फ एक अच्छी कहानी ही नहीं, खुदा आपके साथ इस वक्त बात कर रहा है। लिहाजा मैरलिन ने एक काम किया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी ये कर पाता। One of the greatest miracle ministries I ever read about, short of in the Bible, but on the same level, was a man by the name of Branham. And Marilyn had a problem. The doctor said she couldn't have a child. So she goes to this meeting. How many people were at Branham's meeting when you... बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे बड़ी मौजज़ाती खिदमत जिसको मैंने आज तक पढ़ा, बिल्कुल इसी की तरह एक शख्स जिसका नाम ब्रैनम है, और मैरलिन को एक मसला था। डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लिहाजा वो उस इबादत में जाती हैं। जब आप ब्रैनम की मीटिंग में गई तो वहाँ कितने लोग मौजूद थे? Probably it was about 5,000. It was in Dallas, Texas. गालबन 5,000 लोग इस इबादत में थे जो कि डैलस टेक्सास के अंदर थी। And what happened? और क्या हुआ? Well, I was 26. I'd been married 3 years. They said I could never have a child. I had an inherited condition. And he called me out of the audience. Well, मैं 26 साल की थी और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मुझे बताया गया कि मुझे मौरूसी मसला है और मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और उस शख्स ने जमात में से मुझे बुलाया। वाओ! Are we strangers? I don't know you and you don't know me. If God will tell me what you're here for, you believe me to be His servant, you know something's going on. That feeling between you and I stands that line. You're moving from me, you're moving way away. क्या हम अजनबी हैं? ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे जानती हैं। अगर खुदा मुझे बताए कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आई हैं, तो क्या आप मुझे खुदा का खादिम तस्लीम करेंगी? क्या आप जानती हैं कि कुछ वकूअ पज़ीर हो रहा है? आपको महसूस हो रहा है? आपके और मेरे दरमियान एक रोशनी है। आप मुझसे दूर जा रही हैं, बल्कि बहुत पीछे की जानिब जा रही हैं। I can tell you right now, you're not from around here because you're from a wooded country where there's much heavy timber and wood. And you're suffering with a female trouble, and you've got a desire in your heart to have a baby, and you can't have the baby. मैं आपको इसी वक्त बता सकता हूं कि आप इस इलाका में नहीं रहती। आप किसी जंगली इलाका से आई हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लकड़ियां और दरख्त हैं, और आप किसी जनाना मर्ज में मुब्तला हैं। आपके दिल की ख्वाहिश है कि आपका बच्चा पैदा हो, और आपको बताया गया है कि आपका बच्चा पैदा नहीं हो सकता। And you come from Denver, Colorado. Thus saith the Lord. That's right. Go home and receive your child. God will give it to you. और आप डेनवर कोलोराडो से आई हैं। खुदावंद यूं फरमाता है, ये सच है। घर जाएं और अपने बच्चा को हासिल करें। अगर आप ईमान रखेंगी तो खुदा आपको देगा। here I am on a platform facing this man and had the most unusual experience. I don't know how to describe it, but it was like a wheel within a wheel, lower on the ground, and I could see it, and as it turned, it went whoosh, whoosh. I could hear it, and this man is saying to me, you're not from Denver, you're not from here, you're from Denver, Colorado, you're from a wooded area, and you can't have a baby. Now I'm thinking if और मस्बा पर मैं उस शख्स के सामने खड़ी थी और वहाँ पर मुझे बहुत ही गैर मामूली तजुर्बा हासिल हुआ। मैं नहीं जानती कि उसे कैसे बयान करूँ, लेकिन मैंने एक पहिए के अंदर पहिए को
ज़मीन से थोड़ा ऊपर घूमते हुए देखा और जैसे वो घूम रहा था मैं एक आवाज़ को सुन पा रही थी और वो शख्स विलियम ब्रैनम मुझसे कह रहा था कि आपका ताल्लुक़ यहाँ से नहीं बल्कि आप डेनवर कोलोराडो से आई हैं। आप एक जंगली इलाका से आई हैं और आपकी औलाद नहीं है। और मैं सोच रही थी He had never met you. क्या उनकी आपके साथ पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? Never. बिल्कुल भी नहीं। He just pulls you right out of an audience. Exactly. उन्होंने महज आपको जमात में से बाहर बुलाया? Exactly. बिल्कुल। And he could have been, I mean, how could he have known all those things? और उनको, मेरा मतलब, उनको ये सब बातें कैसे पता चलीं? It was the Spirit of God. He said, you can't have a baby. But he said, go home and receive your child. And the reason I'm telling you wheel within a wheel, it came into my feet. And it wasn't until 10 years later I got pregnant. And I went to a doctor. I said, I think I'm pregnant. He examined me. He said, no, you're not pregnant. That's impossible. He said, you're not pregnant. You're going through a change. So I went home and went through some more changes and, and went to another doctor. He said, this is a 5.5-month pregnancy. And of course, you can see Sarah on my program. खुदा के रूह ने उनको ये सब बताया। उन्होंने कहा कि आपकी औलाद नहीं। फिर उन्होंने कहा कि घर जाओ और अपने बच्चा को हासिल करो। और मेरे बताने का मकसद कि वो पहिए के अंदर पहिया मेरे पाँव में आ गया और फिर 10 साल के बाद मैं हामला हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा मेरा ख्याल है कि मैं हामला हूँ। उन्होंने मेरा मुआयना किया और कहा कि आप हामला नहीं हैं। ये नामुमकिन है। आप हामला नहीं हैं। आप बदन की किसी तब्दीली से गुजर रही हैं। लिहाजा मैं घर गई और फिर बदन की और तब्दीली पेट भरने से गुजरी। फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने कहा कि आप 5.5 महीना से हामला हैं और यकीनन आप सारा को मेरे प्रोग्राम में देख सकते हैं। But the key, 10 years from that word. लेकिन वो खास नुक्ता, वो बात जो 10 साल पहले कह दी गई,